الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. وقال في موضع آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک عزت و جلال اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جنہوں نے تمام بنی انسانوں کو پیدا کیا اور پھر پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ راہ ضلالت سے ہٹا کر راہ مستقیم پر لانے کے لیے اپنی عبادت کی طرف لانے کے لیے سیدھے راستے کی طرف لانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہر زمانے میں ہر وقت اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے رہے. الغرض آخر نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر مبعوث کیا اور دین اسلام کو اپنے لیے تا قیامت تک کے لیے مقرر کر لیا. یہی دن آخری دن ہے. ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ. معزز سامعین اور حاضرین جمعہ، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک سے ایک چھوٹی سی سورت لیکن مکمل ہم نے تلاوت کی ہے اور میں اسی کو موضوع سخن بنا کر چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. شاید کیا ہوتا ہے تیرے دل میں میری بات. اس سے پہلے میں ایک شعر کے ساتھ اپنے شروعات کرتا ہوں کہ ہائے افسوس کہ قرآن تم سے چھوٹ گیا، ہائے افسوس کہ قرآن تم سے چھوٹ گیا، عیش میں دامن ایمان تم سے چھوٹ گیا. مل رہی ہے تمہیں اپنے ہی گناہ کی سزا، مل رہی ہے تمہیں اپنے گناہ کی سزا. دوستو حشر کا دامن تم سے چھوٹ گیا. ابھی آپ کے سامنے جو سورہ تلاوت کی ہے سورہ والعصر. عصر کا معنی مفسرین نے محدثین نے جو کہ عصر کے وقت کی ہے یا زمانے کی ہے. الغرض یہاں پہ قسم کھانا اللہ تبارک و تعالی والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے عصر کے وقت کی. میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی نے کہیں وہ ضحیٰ کی قسم کھائی تو کہیں وہ تین کی قسم کھائی، کہیں وہ شمس کی قسم کھائی. اللہ تبارک و تعالی نے جگہ و جگہ اپنے بندوں کے لیے ایک اہم خبر دینے کے لیے کہیں تین کی یعنی مٹی کی، کہیں موت کی، کہیں اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی. لیکن انسان کے لیے قسم کھانا اللہ کے علاوہ دوسرے کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. جیسا کہ حدیث میں کہا گیا من حلف بغیر اللہ فقد کفر، کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. یہ موضوع سخن نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھا کر کیوں کہا؟ ایک ذہن میں سوال آتا ہے والعصر اللہ تعالی نے زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ تو کہیں مٹی کی قسم کیوں کھائی؟ تو کہیں شمس کی قسم کیوں کھائی؟ تو آپ کو یہ بات ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ جب آپ کورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں یا کوئی بات کو اپنے آپ کو سختی کے لیے یا اپنے بات کو منوانے کے لیے جو آپ کوئی بات کہتے ہیں، آپ کے پاس گواہ موجود نہیں رہتا تو آپ سوائے اللہ کا وہ دیتے ہیں، قسم دیتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی میں نے یہ بات سچ کہا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بات کو منوانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہی بھی قسم کھائی ہے اس کے بعد یا تو آپ نے بشارت دی ہے یا دردناک عذاب سے ڈرایا گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قسم کھا کر والعصر قسم ہے زمانے کی ان
फरमा रहे हैं इल्ला अल्लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, ईमान लाना काफी नहीं, फिर आगे कह रहे व अमिलुस सालिहात, जो नेक अमाल के, व तवासौ बिल हक़, और फिर सब्र की तलकीन की, व तवासौ बिस सब्र, और फिर सब्र पर डटे रहे, कायम रहे। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत में कसम खाकर 4 चीजों से मुतारदिफ किया कि जिस शख्स के अंदर 4 चीज पाई जाए वो तो नजात में है, सही है, अपनी जगह टल है। लेकिन अगर किसी शख्स के अंदर, किसी इंसान के अंदर ईमान, अमल सालेह, हक़ तलक़ीन, हक़ सब्र, ये 4 चीज अगर नहीं पाया जाता तो वो सरासर नुकसान और घाटे में। ये मैं नहीं कहता, अल्लाह तबारक व तआला कलाम कुरान मजीद चीख कर आवाज दे रहा है इन्नल इंसाना लफी खुस्र, इंसान सरापा नुकसान और घाटे में है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, कब ईमान वाला किसे कहते, इल्ला अल्लज़ीना आमनू, ईमान किसे कहते हैं। मेरे दोस्तों, जब हम सहाबा के दौर पर मुताला करते हैं, जब सहाबा की जिंदगी को मुताला करते हैं, तो हमें मालूम होता है कि सहाबा इकराम ने इस दीन के खातिर, इस ईमान के खातिर क्या क्या उन्होंने तकलीफें बर्दाश्त की। अगर उनकी जान, उसकी कुर्बानियों का तस्वर किया जाए तो 5 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। माली कुर्बानी, जिस्मानी कुर्बानी, रूहानी कुर्बानी, और इसी के साथ ख्वाहिशात की कुर्बानी। ये तमाम कुर्बानी सहाबा इकराम ने दी है, तब जाकर हम तक यहाँ तक दीन पहुंची है। और हम अपने आप को ईमान वाला कहते हैं, तो वो भी ईमान वाले थे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन भी ईमान लाए थे। वो तो पहले दूसरे कौम से, दूसरे मजहब से थे, लेकिन उनको तो ईमान लाने में कितनी तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ी होगी। जान की कुर्बानी, अम्मार बिन यासिर जो नए मुसलमान हुए थे, अपनी जान की कुर्बानी दी। उनकी अपनी जान की कुर्बानी दी। औरतों में सबसे पहले कुर्बानी देने वाला अम्मार बिन यासिर की मां है, जिन्होंने अपने मौत का शहादत का जाम किया। और इसी तरीके से अम्मार ने भी जवानों में सबसे पहले शहीद हुए, ये जानी कुर्बानी थी। इसी तरीके से माल की कुर्बानी की बात करें तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या मशहूर है। इसी तरह हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जब एक मौका आया, ऐसा मौका जब उस जमाने में इतने पानी की फरावानी नहीं थी, कुआं की जरूरत थी, जब कुफ़ार मुशरिकीन ने बायकाट का ऐलान किया, जब इस्लाम फैलना शुरू हुआ, उस वक्त मुसलमानों के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उस वक्त ईमान की हरारत इतनी थी, ईमान की कुव्वत इतनी थी कि जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से आवाज देते, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन ने लब्बैक का, चाहे वो जिस्मानी कुर्बानी की बात हो या माली कुर्बानी की बात हो या अपने तवानाई की बात हो या वक्त देने की बात हो या ख्वाहिशात की बात हो, इन तमाम वाक़यात के बारे में एक वाक़या तो आपके सामने रखो। मेरे दोस्तों, जानी कुर्बानी देने के लिए सबसे पहले जो औरतें सामने आई वो अम्मार की माँ थी, और जो जवानों में शुमार करने वाले थे यासिर थे, और लड़कों में जो था हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। और फिर जब माल की कुर्बानी आई तो माल के लिए हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गनी का लक़ब मिला अल्लाह तबारक व तआला से। जब बायकाट जिस तरीके से हमारे सामने अभी 2 साल पहले जो चल रहा लॉकडाउन का जो चला, हमारे सामने कितनी परेशानियां आई, हम कितना परेशान हुए, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि उस जमाने में भी बायकाट किया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिंदगी को इस्लाम के लिए आगे बढ़ाना शुरू किया, इस्लाम की दावत तबलीग की, तो आपको कभी बायकाट किया गया, तो कभी घर से निकालने में मजबूर किया गया, लेकिन अल्लाह और उसके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा ने कभी भी इबादत से दूर नहीं रहे। घरों में इबादत की, अपने महल्लों में इबादत नहीं कर पाए, मस्जिदों में इबादत नहीं कर पाए, खाना काबा जाने की दूर की बात और बाजार से कुछ खरीदने का लायक
इस वोट की जरूरत है। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाथ खड़ा करते हैं, अल्लाह के रसूल मैं देने के लिए तैयार हूँ, अलगर्ज वो पूरा कुआं खरीद कर देते हैं। ये उनकी माली कुर्बानी थी। इसी तरीके का मौका ऐसा आया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमेशा आगे बढ़ जाते थे। एक मौका ऐसा आया कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि शायद इस बार मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पीछे छोड़ूंगा और उससे ज्यादा मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल जमा करूंगा, हदिया करूंगा, ताकि उम्मत के लिए फायदा हो। और मौका ऐसा था कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने माल ढेर सारा माल लेकर आए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए उमर तुमने क्या लाया? उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल हमारे घर में जितने भी सामानें थी तो तमाम को आधा किया और आधा हिस्सा मैंने आपके लिए लाया और आधा हिस्सा अपने घर वालों के लिए छोड़ा। फिर उस इतने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं और वो भी अपना माल लाते हैं और वो कहते हैं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, अबू बकर तुमने क्या लाया? उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल घर में जो कुछ था हमने सब कुछ ले आया आपके खिदमत में। बोला अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? उसने कहा कि मैं अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर आया, ये ईमान था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिल में इरादा किया कि मैं कभी भी उमर से आगे नहीं बढ़ सकूंगा। तो उसके इनाम में क्या मिला? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक के लिए जैसा कि आता है हदीस में कि जन्नत में 8 दरवाजे हैं, 8 दरवाजे में से जिस दरवाजे से चाहे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दाखिल हो सकते हैं। इसकी वजह क्या थी? जब उनकी बात आई तिजारत की, ईमानदारी, जब नमाज पढ़ने की बात आई, पांचगाना नमाज पढ़ना, जब आपको सदका करने की बात आई, सदका करना, जब आपको गरीबों की हिमायत करने की बात आई, गरीबों की मदद करना, जब आपको हिजरत करने की बात आई, घर को छोड़ना, अलगर्ज हर महल्ले पे, हर जगह, हर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर ये करते हैं। इसी तरीके से ख्वाहिशात की कुर्बानी, मेरे दोस्तों, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, इसी तरीके से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी लक़ब मिला। मेरे दोस्तों, अशरफ व अशरफ इन लोगों का नाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे कहा, जैसे ऐलान किया कि 10 सहाबा किराम के लिए जन्नत का टिकट बुक है। ये क्या वजह थी? ईमान की हरारत थी, उन्होंने ईमान पर मुकम्मल खड़े उतरे। मेरे दोस्तों, अब मैं आपको बताऊं ख्वाहिशात की कुर्बानी, ख्वाहिशात इंसान की ख्वाहिशात की कुर्बानी कैसे दी? हज़रत साहब बिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी थे जो काले कलोटे थे, जवान थे, भरपूर जवानी, 27 से 28 साल की उम्र के थे और कई बार कई जगह अपने निकाह का पैगाम दिया, लेकिन सब लोग काले होने की वजह से, बदसूरत होने की वजह से तो क्या कि लोग उसको ठुकरा देते थे, उनका निकाह का पैगाम नहीं एक्सेप्ट करते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की, या अल्लाह के रसूल मैं काला हूँ जिसकी वजह से मुझे कोई पसंद नहीं करते और मैं जब तक आपके सामने ईमान लेकर आया उस वक्त से अब तक मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरी शादी नहीं हो रही है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब्दुल्ला सकाफी के घर जाओ, वो नए इस्लाम कबूल किए और उनके घर में उनकी एक बेटी है, आप वहाँ पर मेरे नाम लेकर कहना और ये खबर देना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा कि आपकी लड़की के साथ मेरा निकाह कर दिया जाए। लेकिन उन्होंने सिर्फ ये बात कहना भूल गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा। उन्होंने जाकर फिर पैगाम दिया कि मैं आपकी लड़की के साथ निकाह करना चाहता हूँ, लेकिन वो बंदा उसको नहीं मालूम कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा। लेकिन उनकी बात से पता चल रहा था, उनकी बेटी अंदर से सुन रही थी, तो उन्होंने अपने अब्बूजान से कहा, अब्बूजान अब्दुल्ला सकाफी तुमने जो किया वो गलत है, क्योंकि वो शख्स अपने मन से नहीं आए थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भेजा था, आप उनको बुलाइए, मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। और अब्दुल्ला बिन सकाफी दौड़ते हुए आते हैं, इतने वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने भी मना कर दिया। फिर अब्दुल्ला सकाफी माफी मांगते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और कहते हैं, अल्लाह के रसूल मैंने गलतियां की है, मुझे माफ कर दीजिए। अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए निकाह फिक्स कर दिया, वहाँ पे निकाह मस्जिद में निकाह पढ़ाई। उसके बाद हज़रत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाजार जाते हैं, उनके दिल में कितने ख्वाहिशात होंगे, अपने बीवी के लिए नई नवेली दुल्हन के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए जाते हैं। बाजार जैसे ही पहुंचते हैं वहां से ऐलान आता है जिहाद के लिए निकलो, उखरुजू फिल जिहाद, जिहाद के लिए निकल जाओ, अल्लाह के रास्ते के लिए निकल जाओ, इस्लाम के
ऊपर, इस्लाम के ऊपर हमला आवर है, मुसलमानों पर हमला आवर है, मदीने पर हमला आवर है, लिहाजा अपने दिफा के लिए, जंग के लिए तैयार हो जाओ। वो साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बीवी के गिफ्ट को खरीदना तर्क करके उन्होंने अपने तलवारें खरीदी, जिहाद का सामान खरीदा और वहीं से अपने बीवी के पास नहीं गए, अपने ससुराल नहीं गया, वलीमा मनाने नहीं गया, बल्कि जिहाद में जाते हैं। सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आवाज आती, ये ख्वाहिशा एक जवान मर्द के अंदर क्या ख्वाहिशात होंगी, उनके अंदर जबकि कितने लोग भुगता चुके थे, उनकी शादियां नहीं हो रही थी, बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट हुआ था, लेकिन वो लोग जब उनको जिहाद की आवाज सुनाई थी तो उन्होंने लब्बैक कहा और अपने ससुराल जाने को तर्क किया, अपने बीवी के लिए गिफ्ट खरीदना तर्क किया, बल्कि उन पैसों से उन्होंने तलवारें खरीदी, ढाल खरीदा और मैदान में गए। और उसके बाद देखे तो उनके साथ क्या वाक़या पेश आया कि वो जिहाद करते रहे, यहाँ पे तो शहीद हो गए। मेरे दोस्तों, अब सोचिए कि उन्होंने कैसी कुर्बानियां दी हैं। अगर हम अपने आप को ईमान वाले कहते हैं तो आप इस वाक़या से आप अपने आप को जानिए कि हमने क्या कुर्बानियां दी हैं और सहाबा ने क्या कुर्बानियां दी हैं। अगर हम अपने वक्त का जायजा लें, अपने आप का जायजा लें, तो क्या सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमाइन की तरह हमारे ईमान है? अगर ईमान है तो तब तो ठीक है, अगर हमारे ईमान में कमजोरी है तो क्यों है? वो भी इंसान थे, हम भी इंसान हैं। अलगर्ज़ उनके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, हमारे सामने अल्लाह के रसूल की हदीस मौजूद है, हमारे सामने कुरान मजीद मौजूद है, उसके बावजूद भी हमारे अंदर ईमान क्यों नहीं आता? अगर अपने आप को 8 रोज़ा नमाज, सिर्फ जुमा की नमाज में हाजिरी देना है, नमाज नहीं। मेरे दोस्तों, ये सिर्फ अपने आप को मुसलमान में गिनती कर लेते हैं, 100% लेना जरूरी है और एक अमल को भी छोड़ना नहीं चाहते। इसका मतलब ये तमाम ख्वाहिशात को जो छोड़ना है, इसलिए कि कुरान में दूसरी ऐलान करता है, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अस्वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा मसाकीन तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादin फी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता याअतिय अल्लाहु बिअमरिहि वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों की सिफत बताई है कि अगर तुमको अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने माँ बाप, वो कमाई जो तुमने कमाया, वो घर जिसमें तुम रहते हो, वो तिजारत जिससे तुम तिजारत करते हो, ये तमाम चीज आपको ज्यादा प्यारा हो, ये कि अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा, तो याद रखो कि कहीं आप पर अजाब ना आ जाए। मेरे दोस्तों, ये दुनियावी जिंदगी, ये 60 साल जिंदगी कुछ भी नहीं, असल तो हमारा आखिरत की जिंदगी है। आखिरत हमें बनाना है, हमें ईमान वाला बनना है। अगर हम ईमान वाला अपने आप को कहते हैं, सहाबा भी ईमान लाए थे, किसी को गनी का लक़ब मिला तो किसी को सिद्दीक़ का, तो किसी को इसी दुनिया में जन्नत का लक़ब, जन्नती करार दिया गया, तो किसी के बारे में कहा गया कि जन्नत में जब मेराज का सफर कर रहे थे तो तुम्हारे जूते की खड़क की आवाज सुनाई दे रहा है। ऐसे सहाबा के कारनामे, जिस तरह उन्होंने अमल किया उसको इस तरह खुशखबरी मिलती गई, इनामात मिलते गए। लेकिन आज अगर हमारा ईमान, हम अपने आप को ईमान वाला कहते हैं, तो हमारा ईमान, हमारा चेहरा नबी के चेहरा जैसा क्यों नहीं, हमारा काम नबी के चेहरे, नबी के काम के जैसा क्यों नहीं, हमारी तिजारत नबी की तिजारत की जैसा क्यों नहीं, हमारा काम, हमारा ईमानदारी क्यों नहीं, हमारा में खयानत क्यों किया जाता है? मेरे दोस्तों, इस तरह जानी जिस्मानी अलगर्ज़ हर मामले में अगर कहा जाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूना हमारे लिए, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए उसवा हसना है, वही ईमान है। ईमान इसका मतलब ये नहीं कि रमजान का महीना आया तो 5 वक्त नमाज पढ़ लिए, चंद पारे कुरान पढ़ लिए और तरावी पढ़ ली और ईद की नमाज में पढ़ने के बाद सवाया खा के मस्जिद को तर्क दुरूद कर दिया, हफ्ते में एक दिन नमाज पढ़ लिए, जुमा की नमाज पढ़ ली, इसको ईमान नहीं कहते। मेरे दोस्तों, या इसी तरीके से कुर्बानी कर लेना, जानवर काट लेना ईमान नहीं है। मेरे दोस्तों, असल ईमान तो ये है कि अपने जिस्म से जिहाद करें। जिहाद किसे, आजकल जो जिहाद का बदनाम किया जा रहा है कि मुसलमान जिहाद के इस लाठी के जोर से, तलवार के जोर से फैला। जिहाद तो अपनी है कि आपका अखलाक जिहाद है, आपका अखलाक अगर सही हो जाए, आज भी अगर मुसलमान आपके पैर के धूल चाटेंगे, उसकी वजह यह है कि आपका अखलाक होना चाहिए। मेरे दोस्तों, आप अपने हाथे में, अपने मुस्लिम मोहल्ले में जाकर देख लीजिए, अपने गली को कभी झाड़ू नहीं लगाते, वो म्युनिसिपैलिटी का इंतजार करते हैं कि म्युनिसिपैलिटी आएंगे तो झाड़ू लगाएंगे, लेकिन गैर मुस्लिमों का मोहल्ला जाके देखिए, वो अपने पैसे से, अपने
اپنے بساتے خود رکھتے ہیں اور جھاڑو لگواتے ہیں، خود جا کے جھاڑو لگتے ہیں. کیوں؟ اس کو جا کے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہ الشطر طہور الایمان نصف الایمان، کہ باقی صفائی آدھا ایمان ہے. میرے دوستو اس کا مطلب کیا کہ ہم اپنے گھر کو صاف کر لیں یا اچھے سے اچھا کپڑا پہن لے یا اپنے عطر لگا کر اپنے کپڑے کو استری کر کے پہن لے، یہ صفائی نہیں. صفائی تو اصل یہ ہے کہ دل کی صفائی ہونی چاہیے. اب آپ کا اندر سے آپ کے پڑوسی پریشان نہ ہو، آپ کے دوسرے لوگ پریشان نہ ہو. میرے دوستو آپ ایمان کا حرارت دیکھیں کہ آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کو پریشان حال دیکھتے ہیں، اس سے بائیکاٹ ہو کے چلے جاتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ کہیں کچھ مانگ نہ لے، یہ مفلس ہے، یہ غریبی ہے. اگر ہم کسی کی عزت کرتے ہیں تو پیسے کی وجہ سے عزت کرتے ہیں. میرے دوستو ایمان کی علامت نہیں ہے. ایمان کی علامت کیا تھی کہ جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں کے انصار صحابہ نے اپنے گھر تک دیے، اپنے جائیداد کا آدھا حصہ تقسیم کر دیے. یہاں پہ تو ایسا معاملہ آ گیا کہ اپنے بھائی کی مال کو ہڑپ کرنے کے لیے تیار ہے، بہنوں کو اپنا حق دینے، وراثت حق دینے کے لیے تیار نہیں. یہ کس کی علامت ہے؟ یاد رکھو آج جو ہمارے قوم کی حالات ایسی ہے، معذول ہے، ہر طرف سے ستائے جا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. جس سے میں شروع میں ایک شعر پڑھا، ہے افسوس کہ قرآن تم سے چھوٹ گیا، ہے افسوس کہ قرآن تم سے چھوٹ گیا. عیش میں مل رہی ہے تمہیں اپنے سزا، عیش میں مل رہی ہے تمہیں گناہ کی سزا. دوستو حشر کا دامن تم سے چھوٹ گیا. یہ الغرض ہمارا یہ اعمال ہے، ہماری یہ زندگی کا نمونہ ہے. میرے دوستو کس معاملے میں ہم کہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں، چاہے ہماری نماز کے تعلق سے پنجگانا نہیں آتے، فجر میں سونے میں چلے گئے، عصر ظہر ڈیوٹی میں چلے گئے، عشاء میں تھکے ہوئے ہیں اور مغرب میں چائے پان میں چلے گئے. میرے دوستو ایمان نہیں. آپ جہاں بھی ہیں وہاں نماز قائم کیجئے. نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں ہیں، وہاں پہ بھی نماز نہیں چھوڑی. مرض الموت میں ہیں، وہاں پہ بھی اشاروں میں نماز پڑھی اور آخری وقت نماز کی تلقین کرتے رہے. تو کیا ہمارے اندر 5 وقت نماز نہیں پڑھی؟ کیا ہم اپنے آپ کو مومن کہہ سکتے ہیں؟ اگر مومن نہیں کہہ سکتے، ان الانسان لفی خسر، تو آپ اسی میں گھاٹے اور نقصان میں ہیں. ایمان والے نیک عمل آپ کے اندر وہ نیک عمل ظاہر سی بات جب آپ ایمان لائیں گے. اس کا میں ایک دنیا میں ایک مثال دے کر اپنے بات کو ختم کرتا ہوں. میرے دوستو ایمان لانے کے لیے سب سے جو پہلی شرط یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا ہے. تو ہم لا الہ الا اللہ کو کتنا مانتے ہیں؟ آپ کو ایک دنیا میں ایک عقلی دلیل سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارا اندر ایمان کیا ہے. انسان جب شادی کرتا ہے، لڑکی کو جب قبول کرتا ہے، قاضی صاحب ایک الفاظ ان سے کہلواتا ہے، یہ کہو قبلتھا. کیا مطلب؟ میں نے اس کو قبول کیا. اتنی سی بات کہنے کے بعد ایک اجنبی لڑکی ہمارے نکاح میں آ جاتی ہے اور ان کے نام و نفقہ تمام چیزیں ہمارے ذمہ آ جاتی ہے، چاہے کپڑا دینا، گھر دینا، مکان دینا، اس کو رکھنا، ہر الغرض تمام چیزیں ہمارے ذمہ آ جاتی ہیں. ہم اس کو جیسے چاہے استعمال کریں، جہاں چاہے رکھیں. لڑکی کے باپ کے گھر سے دوسرے گھر سے اپنے گھر پہ لے کے آ جاتے ہیں اور یہ تمام چیز دینے کے بعد اگر وہ لڑکی کو آپ کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لے، یعنی کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کو غیر مرد کے سامنے دیکھ لے، یعنی اس کے ساتھ کمرے میں تنہائی میں وقت گزارے، کیا آپ اس لڑکی کو برداشت کرتے ہیں؟ نہیں. سب کا جواب یہی آئے گا کہ نہیں. کیوں؟ کہ ہم نے اس کو نکاح کیا اور اسلام میں جائز نہیں دیتا، اسلام میں اجازت نہیں دیتا کہ کوئی لڑکی کوئی بیوی کسی دوسرے غیر مرد کے ساتھ وقت گزارا اور اس کو آپ اپنے پاس رکھے. ایک اپنے نافرمانی اس کی برداشت نہیں کر سکتے. حالانکہ ایک مرتبہ وارننگ دی جا سکتی ہے، ایک مرتبہ اس کو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم گوارا نہیں کرتے. اسی طریقے سے جب ہم ایمان لاتے ہیں یا بچے جب بڑے ہوتے ہیں، اس کو سکھایا جاتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے اور رسول ہیں. آپ نے وہاں پہ قبول تو کہا کہ میں نے اس کو قبول کیا. یہاں پہ بھی آپ چیخ چیخ کر اعلان کرتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. تو آپ بتائیے کہ آپ اللہ کو اللہ مانتے بھی ہیں، اپنے معبود بھی مانتے ہیں، سرپرست مانتے ہیں، رازق مانتے ہیں، اس کے
बावजूद भी अगर आप उनके अमाल के मुताबिक बताए हुए रास्ते के मुताबिक अपनी जिंदगी को नहीं गुजारा, कि अल्लाह ताला बर्दाश्त करेगा? आपने तो उन्हीं की दी हुई चीज से आप उनको खाना पीना दिए, लेकिन आपकी जो जिंदगी सांस है जिसकी वजह से आप जी रहे हैं, अगर वही अल्लाह ताला छीन ले तो आप कहाँ जाएंगे? अब ये सोचिए कि अल्लाह ताला हम पर कितना बड़ा मेहरबानी है कि हम कितने उनकी नाफरमानी करने के बावजूद हमें रिस्क देता है, उनकी नाफरमानी करने के बावजूद हमें दुनिया में जिंदा रखा है, उन्होंने अपने नाफरमानी के बावजूद हमें मुसलमान बनाया, लेकिन हम उसकी कदर नहीं करते। आखिर क्या वजह है? मेरे दोस्तों, आप अपने जब अपना मामला आया तो अपने बीवी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन आप सोचिए कि आपको जो अल्लाह ताला ने बनाया, आपको ये दुनिया में वजूद बख्शा, आपको जो आखिरी नबी का उम्मत बनाया, आपके सामने कुरान लाया, आपके तक ईमान को पहुंचाने के लिए सहाबा किराम ने कुर्बानी दी है, सल्फ़े सालिहीन ने कुर्बानियां दी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम नहीं माने तो आप सोचिए, अब अपने आप में फैसला कर लीजिए कि हम ईमान वाले हैं या गैर ईमान वाले हैं। अगर आप कोई आलिम ऐसे खुतबे के इससे कह दे कि आप गैर कुफार है, कुफार कमाना है होता है इनकार करने वाला, तो आप खुद अपने दिल में सोच ले कि हम इनकार करने वाले हैं या मानने वाले। अगर आप मानने वाले हैं, इनकार करने वाले नहीं, तो आप ये सोचिए कि आप ये कहते हैं कि हम इनकार नहीं करते, नमाज पढ़ना गलत नहीं है, तो आप नमाज पढ़ना बोलते हैं कि नमाज पढ़ना पढ़ने से अज़ाब है, फिर आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते? ये तो उसी तरह इब्लीस की तरह बात हो गई कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किए तो उनको कहा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो अपने आप में आ गया और कहा कि मैं उसको कैसे सजदा करूं, वो तो मिट्टी से बना हुआ, मैं आग से बना हुआ हूँ। मेरे दोस्तों, इसी तरीके से आपसे कहा जाए, ये तो आलिम उलमा बोलते रहते, ये हमारी बात नहीं होती, हम उलमा की बात नहीं होती, अल्लाह का कलाम है। जब क़यामत के दिन आपको जहन्नम में डाला जाएगा तो जहन्नम के दरोगा आपसे पूछा जाएगा, पूछेंगे और क्या आपके पास क्या कोई डराने वाला नहीं आए थे? तो आप कहेंगे क़ालू बला क़द जाना नज़ीर, क्यों नहीं, हमारे पास तो आए थे, हमें खबर दी जा रही थी, लेकिन हम उसको बात को नहीं माने। फिर आपको घसीटते हुए, हम सबको घसीटते हुए जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, इसलिए ईमान सिर्फ इसका नाम नहीं कि हम अपने आप को, अपनी जिंदगी को देख ले, बल्कि हमें पूरे तौर पर, चाहे हमारा हुकूक का मामला हो या फराइज़ का मामला हो, मुकम्मल तौर पर अमल करना है। ये तहैया करें कि नबी की सीरत कैसी थी, नबी ने अपनी ज़िंदगी कैसी गुजारी है। मेरे दोस्तों, अगर आप ये कहते हैं, इसी तरह चंद हमारे गुनाह ऐसे बन गए हैं जिसको हम गुनाह समझते नहीं, खास तौर पर शादी खाने में बेजा खर्च करना, जो कहीं से भी सबूत नहीं है। इसी तरीके से टखना से नीचे कपड़ा पहनना, जिसको हम जवाब समझ लेते हैं, नमाज के हद तक ऊपर उठा लेते हैं, बाकी नहीं। मेरे दोस्तों, इसके लिए बहुत बड़ी वाइड आई है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इन तमाम बुराइयों से और मुकम्मल ईमान वाला बनाएं और एक दूसरे हुकूक को अदा करने वाला बनाएं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाएं। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमाएं। मेरे दोस्तों, जो गुनाह हो गया हमसे हो गया, लेकिन अब आइंदा आगे ख्याल करें और कभी हक़ की तरफ के मामले सुनने, नेक अमल इसको कहते हैं कि आपकी ज़ात से, इसकी इतनी सी तारीफ है कि आप अपने ज़ात से किसी दूसरे को तकलीफ ना दे। इसी तरह सब्र करना, कोई भी तकलीफ पहुंचे तो उसमें सबसे पहले अल्लाह का सब्र करें। अल्लाह जिस हाल में रखा हमें, अल्लाह ताला शुक्र है। जैसे कि हालात आया है लॉकडाउन का, ये आपको मैं वाक़या सिर्फ इसलिए बताया कि इससे पहले भी हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये वाक़या पेश आ चुका है, बायकॉट किया गया था। आपको तो कम से कम राशन पानी मिल रहा था, राशन की दुकानें खुली हुई थी, वहाँ की दुकान खुली होने के बावजूद भी मुसलमान को जाने की इजाज़त नहीं थी, और पहुँच भी जाते थे तो दुकानदार कुछ नहीं देते थे मुसलमानों को। क्यों? कि वो जो उस दौर के कुफ़ार मुशरिकीन थे, आपसे बगावतें की और आपसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो लोग ईमान पे खड़े रहे। कहने का मतलब ये है, ऐसे हालात तो ज़िंदगी में आते रहते हैं, लेकिन आपको अल्लाह को याद करते रहना है और हर मामले में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इसी तरीके से अगर कोई मुसलमान भाई बहन परेशान है, हर इम्कान जहाँ तक आपसे कोशिश हो सके उनकी परेशानी दूर करें, और परेशानी दूर ना कर सके तो कम से कम उसकी मजाक ना उड़ाए। आजकल क्या होते हैं, कुछ गरीब होते हैं तो उनका मजाक उड़ाया जाता है, बाद जगह हमने देखा। मेरे दोस्त, इस तरह
روحانی قربانی جیسے کہا گیا، جسمانی قربانی جیسے کہا گیا، کم سے کم اپنی زندگی میں کوئی ایک ایسا عمل کرے جس سے ہم اللہ کے سامنے بارگاہ میں حاضر کر سکیں، یا اللہ میرا اتنا اچھا عمل تو نہیں ہے لیکن یہ آپ کے لیے، آپ کے خاطر ہم نے یہ عمل کیا، کوئی ایک ایسا عمل کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان عمل کے ذریعے سے کم ہمیں جنت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام مکمل طور پر ایمان والا، ایمان کامل عطا فرمائیں اور نیک عمل کرنے توفیق عطا فرمائیں اور صبر جمیل کرنے توفیق عطا فرمائیں۔ صبر اسلام کی خاطر جو بھی پریشانیاں آئیں ان پریشانیوں میں ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ایمان پر خاتمہ، ایمان پر خاتمہ ہو تو ہمیں ایمان پر خاتمہ آخر وقت میں نصیب فرما۔ آمین و آخر دعوانا۔